Okay, so we are back with a new video, and the topic for today is Streamlit. So the same question: any one-liner for Streamlit? Dev. Okay. Uh, my knowledge to Streamlit is that it is a UI library or framework based on Python, Mm-hmm. mainly used for data analytics. Right. So, Graph. like, I've used Streamlit a lot. Okay, and this is quite good tool to use for most of the thing. It's just like you can build prototypes. There are a lot of issues building with the full like a product in itself, because then you deal with a lot of problem related to authentication, session management, and like if a lot of people are working, then it will also, I think it will create issues if you want to scale. If it is just like one person thing, you run it locally, then it's great. ठीक है. Mhm. और like they have a lot of good community, I think, as per it seems. काफ़ी सारे फंक्शन भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन हैं, तो यू जस्ट नीड अ लाइक जस्ट टेक द डेटा एंड स्टार्ट डूइंग सम वर्क. ठीक है. तो और सेटअप भी बहुत ईजी है. जस्ट स्टार्ट विद अ बेसिक code, you set up the like library, and then at the moment you just have everything that available. तो जैसे अपन प्लेग्राउंड में चल के देखते हैं क्या क्या है. लेट्स स्टार्ट वेबसाइट. Faster way to build and share data apps. That correct. Data app is what we talked, right? Yes. और अगर अपन देखेंगे तो बिल्ट इन चीज़ों में जैसे प्लेग्राउंड में शायद इन्होंने दिखा रखा होगा कि जैसे ये तो हेलो वर्ल्ड ऐप होगी मार्कडाउन दिखाने के लिए, राइट? और Mhm. ब्राउजर में एक रेंडर यूज आता है सिंपल, जस्ट जस्ट लाइक एनी लाइक फ्लटर एंड ऑल दीज टूल्स, दे हैव दिस ऑन रेंडरिंग सपोर्ट वेयर रन पाइथन डायरेक्टली एंड देन इट्स बिल्डिंग. ये इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है एलएलएम के लिए ना. आजकल कोई डेटा बनाना चाहता है तो सिंपल मॉड्यूल कंपोनेंट बना दिया है. यू कैन यूज इट एंड जस्ट डायरेक्टली यूज इट. कंप्यूटर विजन, जो स्पेशल, लॉट ऑफ गुड कूल थिंग. ठीक है. पाइथन है ना, ये सब चीज़ें बिल्ट इन आती हैं. साइड बार भी है, फॉर्म वगैरह भी है, सब कुछ है मतलब. Mhm. तो कंपोनेंट में देख लेते हैं एक बार, है ना. पीजी वॉकर, ये शायद इन्होंने मे बी है ना, कुछ कुछ चीज़ें इनकी वैसी होती हैं जो कि कम्युनिटी ड्रिवन है ना. बाकी इनके स्टैंडर्ड जो कंपोनेंट है वो तो फिर अलग है ना. हाँ. वेब आर टी सी, एन एल यू, आई थिंक उनको वेब आर टी सी पे भी उनको कुछ बनाना है एक दिन, है ना. वेब आर टी सी एक वो जो था हाँ. ना, क्या था, पीयर टू पीयर वाला, पी टू पी. Yes. फाइल शेयरिंग वाला है, ऐसा कुछ हाँ, बना ऐसा सकते हैं. कुछ, करेक्ट. ठीक है, विल डू दैट. तो आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट, राइट. लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्स. ठीक है, इंस्टॉलेशन. सो अगेन सेम. So let me switch back to my cursor and then we'll start doing it. Okay, so tell me if you can see my screen of cursor. Not yet. Okay, you will not be seeing it. Let me share to you so that you can also see. Tell me now if you can see. Yes. Okay, so again write a standard UV init. Okay, so that we have a UV setup. As per the command UV add Streamlit to install, that's what they have mentioned. Okay, okay, loading a lot of things. By default taking pandas, pyro and everything. Mhm. तो ठीक है, done. अब as per the documentation they say just you have to type Streamlit hello and it should work. So let me see how it will work. UV run Streamlit. I never used Streamlit with UV, so most probably this should work. Okay, it gives me error, but I don't know why. What's the error? Okay, Streamlit hello, I have to say UV run Streamlit hello so that it can just run a sample page. Okay, Mhm. so I don't know if you can see, but let me share my Chrome. So this is the page it started. So it's running on localhost. Okay, let me close this first. So running on like this is a sample app. This is our data frame demo. You can get a sidebar collapsible. This is nice. So code option will give you the code also. I don't know where is the.
Okay, maybe somewhere else. Okay, data frame. Okay, code is also available and see they give a nice copy option everything. तो काफ़ी अच्छा है, मतलब है ना, फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो, रियल टाइम अपडेट हो रहा है, टेबल डेटा, डेटा फ्रेम सब कुछ चल रहा है ना. ठीक है. प्लॉटिंग डेमो, नाइस. ओके, तो देखिए डेटा. ओके, आई नेवर, ये कुछ उन्होंने अलग करा है. अच्छा, एनिमेशन है ये शायद. ओके, हाँ एनिमेशन है कि ना थोड़ी देर में देखा ना डेटा पॉपुलेट हो रहा है, तो अपन इसको वो भी कर सकते हैं कि भाई ऑनलाइन पार्टीशन डेटा लेके आ रहे हैं तो उसको फिल करके अपन दिखा सकते हैं, मे बी. आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स द राइट यूज केस, बट हाँ. ओके, दिस इज गुड है. ओपन स्ट्रीट मैप यूज कर रहे हैं लोग. क्या है ये? बाइक रेंटल्स पीडी के लिए बार्ट स्टॉप एग्जिट, बार्ट स्टॉप नेम्स, ऑटो नेम्स. तो इनका जो भी कंपोनेंट है वो st डॉट से चलता है, ये इनका मेथड है. तो लाइक इफ यू वांट टू बिल्ड योर ओन कंपोनेंट यू हैव टू फॉलो, मे बी फॉलो देयर एक्सटेंशन एंड देन यू कैन डू इट. ओके, लेट्स. अच्छा, तो ये इन्होंने शायद इसका कुछ मैपिंग डेमो बना रखा है डेटा के हिसाब से. एक एनिमेशन है, इट डिस्प्ले एनिमेशन फ्रैक्टल बेस्ड ऑन द जूलिया सेट. नाइस. तो हाँ ठीक है ना. हाँ. एनिमेशन वाइज तो ठीक है जो भी है. आई थिंक नेक्स्ट वी हैव टू see is to build something, right? So Right. I'm thinking of getting some data online. Okay, maybe some cricket data, and then we'll analyze that with something. Okay, no much code, we'll just do a vibe coding. So let me see if there is anything what we can do. What we can do is let's search. Okay, IPL match data CSP 2025. किसने तो डाला ही होगा उस पर गिटहब पे. ओके, CSP we needed. मैच इन्फो इज हियर. नाइस, ठीक है. 2025 का डेटा इसके अंदर है क्या? ओके, 2025 का डेटा है इसके अंदर, ठीक है. सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड दिस फाइल, रॉ फाइल. ओके, आई हैव डाउनलोडेड इट. ऑलराइट, let me take this data to the okay. So I have the data with me now. Let me share the cursor. You can see it. I'll close this window for now. Okay, all right, so data is available. Okay, let me put a plan for cursor. Build an dashboard for IPL data set, IPL match data set available at matchinfo. Create Streamlit app with possible KPIs. Use filters. Okay. So most probably it will build something that can help us to get the idea what it can do. Right. We might need to install few dependencies in between क्योंकि अपन ने सिर्फ स्टीमलिटी डाला है अभी तो, है ना. बट लेट्स सी क्या क्या प्लान करता है. ठीक है, इसने डेटा देख लिया है. मैं ये सोच रहा था कि इसको मैं डेटा भेजता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं कि पूरा डेटा. तो इसने क्या करा है कि टोटल टॉप 10 रोज ले ली, है ना. ठीक है, अभी पांडा से प्लॉटली ऐड कर रहा है, विच इज़ एक्जैक्टली वी नीड टू do the graphing. Create comprehensive Streamlit dashboard KPIs and filters. Okay, add data processing analysis functions. Okay, तो ठीक है, कुछ तो अच्छा करेगा ये.
इसके साथ एक प्रॉब्लम है कर सकते मैंने नोटिस करा है कि ना ये ना खुद की CSS लगा देता है स्टैंडर्ड टूल को यूज़ करने की जगह। मतलब ऐसा मैंने 2-3 बार नोटिस करा है, तो हो सकता है आज भी ये सेम चीज़ करे, बट डजंट क्रिएट इश्यूज फॉर अस। और ना इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि वी शुड ऑल्सो बिल्ड अ वीडियो जहाँ पे वी विल यूज़ दिस स्ट्रीमलीड टू बिल्ड चैटबॉट इंटरेक्शन, जिससे कि ना कई लोग जो AI का यूज़ ChatGPT का यूज़ करके LLM का यूज़ करके जो बनाना चाहते हैं ना कि चैटबॉट बनाना है, तो वो खुद का बिल्ड करेंगे अच्छा जो भी है ना, बट स्टैंडर्ड कंपोनेंट है इसके अंदर, तो अपन को वो भी एक अपन सेपरेट वीडियो डाल सकते हैं, है ना। समझ। तो ठीक रहेगा। और मे बी यू ट्राई इट दिस टाइम, आई विल बी यू विल बी मी, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं अपन स्ट्रीमलीड वीडियो के लिए। पर ठीक है, ठीक है। देख लेंगे अपन, फिर तुझे बोलना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या क्या करा है इसने? टोटल मैचेस, नंबर ऑफ टीम। टोटल मैचेस, नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ वेन्यूज, नंबर ऑफ सिटीज, फिल्टर्स दे दिए हैं, नाइस विजुअलाइजेशन, टीम परफॉर्मेंस, टॉप 10 टीम्स, टॉस एनालिसिस, विन एनालिसिस, टाइम सीरीज, हेड टू हेड एनालिसिस। ओके, मेन डॉट पाई के अंदर लेट मी कीप ऑल कर देता हूँ पहले मैं। ओके ठीक है, तो देख डैशबोर्ड का टाइटल हो गया, एक्सपेंडेड मोड करा हुआ है, डेटा को इसने कैश में डाल दिया है, तो जिससे कि बार बार लोड ना करे। आई समटाइम ये काम करता है बहुत अच्छा, समटाइम नहीं। उसके बाद कॉलम टॉप 10 टीम विन्स, विन डेटा है क्या इसके अंदर? अच्छा विनर है ना इसके अंदर, ओके नाइस, ठीक है ठीक है। सो लेट्स रन यूवी रन, मुझे लगता है कि ना इसने शायद इंस्टॉल नहीं करा, यूवी रन स्ट्रीमलेट मेन डॉट पाई। अच्छा वो इंस्टॉल कर रहा है पैकेज इसको, है ना। अच्छा सॉरी, मूवी सिंक करना है। यूवी रन स्ट्रीमलेट रन मेन डॉट पाई, ठीक है। आई थिंक इसको बिना उसके चला सकते होंगे। ओके सो यू आर रेडी, यस। दिस इज व्हाट वी गॉट। सो आईपीएल मैच एनालिसिस डैशबोर्ड, नाइस। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में टोटल मैचेस, टीम्स, वेन्यूज, 11 टीम थी, वेन्यूज 21, सिटीज 20। मेरे को कर्सर दिखा है ना। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके लेट मी टू गेट दिस व्यू आल्सो। अब दिख रहा है? हाँ हाँ तो देख, है ना, इसका मतलब एक वेन्यू एक सिटी में 2 वेन्यू भी देखी थी मैं ना। ठीक है, कौन सही सी बात। सिटी है ऐसी 2 वेन्यू इसके अंदर भाई? टॉप 10 टीम्स वाई विंस, यार ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा ये सबसे छोटा है, टोटल नंबर विंस 25 है और 37 है केकेआर के पास, है ना। ठीक है, तो मतलब एज एक्सपेक्टेड आरसीबी सबसे पीछे दिख रही है ना। ठीक है, मैं राजस्थान सीएसके को मैं ऊपर सोच रहा था, गुजरात टाइटंस यार, लेकिन ये ऊपर है। मुझे हो सकता है डेटा शायद अपना ना बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब अपने पास ईयर ऑफ डेटा बहुत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट के 5 साल का डेटा है क्योंकि शायद इसलिए। हाँ सही बात। अच्छा देखिए ना, सारे डेटा अगर ऐड कर लेंगे तो चीज़ें शायद बदल जाएं। हाँ यूँ ही ना, बात मैं वही कह रहा था देख। पूरा टाइटंस चला गया सबसे हाँ पीछे। वही कह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो अब ठीक है ना। अच्छा वो आरसीबी तो गायब ही हो गया उसमें भाई। नहीं है ओके यहाँ पे ना 1-0, क्योंकि ये शायद टीम ही नहीं है ना ये, तो शायद इसलिए, है ना। ठीक है, टॉप 10 टीम्स वाई विन परसेंटेज, विन परसेंटेज का मतलब कितने मैचेस खेले होंगे ना, वो चीज़ करेक्ट। हाँ राइजिंग पुणे सुपर जायंट 62% मतलब हाईएस्ट इनका है। देख रहे हैं, नई टीम आगे आ रही है, आरसीबी भी ऊपर है, ऐसा कैसे आरसीबी सकता तो फाइनली हारती है ना फिर। है? तो ऐसा थोड़ी है, उनका कॉम्बिनेशन में गलत है कुछ, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं यार, इसमें डेटा कुछ वर्ड देखिए ना, ये बेंगलोर और बेंगलुरु ये 2 टीम है, इसमें से डेटा क्लीन अप करना पड़ेगा, डेटा सही नहीं है। तो एक है सही कि बात। कम्युनिटी डेटा गलत हो गया, इसलिए शायद वो हो रहा हो ओवरऑल। ठीक है, टॉस एनालिसिस, नाइस। टॉस फील्ड ऑफ बैट, इसका क्या मतलब है? जीतने के बाद कितनी बार वो फील्ड, कैसा है। तो मतलब और ये अपन ये कह रहे हैं कि ना ज़्यादा लोग फील्ड चूज कर रहे हैं जीतने के बाद। हाँ फिर तो
या तो उल्टा होना चाहिए ना, टॉस की जगह कि ये क्या लोगे आप बताओ, जो फील्ड देगा वो पहले करेगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो सेंस ही नहीं रहेगा उसका तो। पर ये नहीं पता था मेरे को ऐसा भी होता है, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग, कैसा होता है। टॉप विनर इम्पैक्ट ऑफ मैच रिजल्ट, अच्छा टॉस विनर इम्पैक्ट, 52% जो विनर, मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब 50-50 है तो ना, मतलब फिर इसका कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का कहने का मतलब। व्हाट डू यू थिंक? एक ये भी होना चाहिए था कि जिसने फील्ड लिया है ना वो जीता, या फिर वो एक एनालिसिस ये भी होना चाहिए था, राइट? ये भी ऐड कराता हूँ इसको मैं एक, ठीक है। वेन्यू एनालिसिस में है ईडन गार्डन, वानखेड़े, चिन्ना स्वामी, अच्छा सबसे ज़्यादा इसके अंदर है ना, 77 मैच हुए ईडन गार्डन में, ठीक है। टॉप सिटीज, मुंबई, यार मुंबई में होंगे मुझे लगता है 2 गार्डन है ना, वानखेड़ा स्टेडियम, वानखेड़े तो मुंबई का ही है। चर्च गेट, मुंबई, हाँ, तो इसका मतलब यही हो गया ना, वानखेड़ा मुंबई हो गया, ईडन गार्डन ईडन गार्डन तो कोलकाता में। कोलकाता, डेट डालते हैं, विच इंडियन सिटी हैव 2 क्रिकेट स्टेडियम फॉर IPL? विशाखापट्टनम में तो है भाई, मुंबई में है वानखेड़े और DY पाटिल। वानखेड़े DY पाटिल, तो ये आ रहा है क्या इसके अंदर? DY पाटिल तो इसमें आ नहीं रहा अपने डेटा में। हो सकता है डेटा के अंदर हो ना, रॉ डेटा के अंदर, मैचेज ओवर टाइम, ये कोविड है ना, तो 2014 में कम मैच क्यों है पता नहीं, कोई रीजन होगा, ठीक है। लेकिन चलिए बढ़ 70 मैच है ना। प्लेयर ऑफ द मैच एनालिसिस, राणे इज द, अच्छा हाईएस्ट ही है 22 टाइम्स। टॉप टीम्स बाय प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, मुंबई इंडियंस को सबसे ज़्यादा है, ओके। टीम हेड टू हेड एनालिसिस, चेन्नई सुपर किंग में से चेन्नई सुपर किंग। तो इसका क्या मतलब है यार, लेट्स सी मुंबई इंडियंस, ओके। अच्छा वो डेटा ही अलग था, ये एनालिसिस आया 17 मैच टोटल में सही, मुंबई इंडियंस से 20 विन करे है ना, नाइस। अबे अच्छा ये कलर चेंज हो गया, कलर वैसे इसको सेम रखना चाहिए था आइडली, है ना, कि अपोनेंट टीम के लिए, जिससे कि डेटा सेटिस्फैक्टरी लगे, वरना भी तो कंफ्यूज हो रहा है। नाइस, काफी अच्छा बना दिया, और ये फिर मैच डेटा पूरा कर दिया इसने, है ना, ठीक है ना। मैं इसको एक ये वाला एनालिसिस और ऐड करवाता हूँ इसको, कि ना, लेट मी जस्ट आस्क टू अपडेट, कैन यू आल्सो ऐड अ स्टेट रिगार्डिंग मैच विन वर्सेस चूज टू फील्ड, तो अभी ऐड कर रहा है एक और ग्राफ, है ना, बट ठीक है, आई लाइक इट। वेन्यू वाला ही था ना, सबसे ज़्यादा मुंबई में मैचेस होते हैं, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर में भी यार ठीक ठाक आ गया ना यार, जयपुर में एटलीस्ट हर साल 4-5 मैच तो होते ही ना। तो नहीं वही चीज़ में, जैसे जयपुर, बेंगलोर पीछे है उससे, फिर चंडीगढ़, पुणे और अहमदाबाद, ओके, ये पीछे होना था ऐसा लग रहा था सबसे, बट ठीक है, नॉट इशू। पर ग्राफ से अच्छे लिए, मुझे अच्छा लगा इस तरह की ग्राफ, है ना, कलर इंडिकेटर हिसाब से। हालांकि इसने लगा दिया, से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडियन तो बार ग्राफ ये दिखा जाता है ना, क्योंकि मतलब इससे अलग अलग फील कुछ नहीं हो रहा, और कंफ्यूज नहीं हो जाएगा आदमी, कोई बार ग्राफ दिखा जाए तो सिंपल, कि मेरे को डेटा दिख रहा है, ये शायद ये उसमें बेटर होता कि अगर आपको पूरा ऊपर से नीचे कुछ दिखाना होता, स्टैक्ड बार ग्राफ टाइप का कुछ होता, उसमें शायद मुझे लगता है कि बेटर होता कुछ, है ना, ठीक है, ओके। तो देख और रिफ्रेश करना पड़ेगा, और है ना, रीरन कर दो, क्योंकि फाइल चेंज हो गई, जिसने ऑर्डर कर लिया, इफ आई रीरन इट वैसे एरर ना दे अब, ठीक है, नाइस। ये आगे देख, विन चूजिंग टू बैट, है ना, विन चूजिंग टू फील्ड,
ठीक। तो बेसिकली बहुत फील्ड ज़्यादा वाला करीब लग रहा नहीं है, फील्ड वाला ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, है ना? मतलब है लेकिन यार ऐसा नहीं कह सकते, 8% का फ़र्क तो है ही है। 45% लोग चूज़ टू बेटर, चूज़ टू बिल्ड वो है। ठीक है। और ये सब क्या है, ग्राफ के ऊपर ये क्या? बटन्स ये? वगैरह भी है ना? नहीं, इसके ऊपर ये बटन्स वगैरह भी है ना? ये तो ये है ना कि भाई फुल ग्राफ देखना है आपको, पैन करना है, ये चीज़, समझ गया? फ़ोटो लेना है, ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर दो, फुल ऑन डेटा एनालिसिस का हिसाब। जैसे कि टेबल में भी होता है, देखिए जैसे टेबल है ना, तो यू कैन गो टू दिस, है ना, यू कैन फुल स्क्रीन सर्च वाला। द टेबल अहमदाबाद, है ना, तो ये फाइल हो गया, नाइस। अरे यार इतना अच्छा करा, दोनों चीज़ हाईलाइट कर दी, फुल रो। ये वो सारे कॉलम्स हाईलाइट कर रहा है जिसमें हाँ बिल्कुल, वैल्यू और मैच करनी है। डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर सकते हो, यू कैन, है ना, तो ठीक है, अच्छा है मतलब। ओके, नाइस टू नो। सो एनी अदर क्वेश्चन, एनीथिंग दैट यू वांट टू नो? देख डेवलप के अंदर शायद इसके अंदर ये भी होगा ना कि खुद का आप बना सकते हो कॉन्सेप्ट, ये ना खुद का बनाने का भी होगा इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है। कस्टम यूआई कंपोनेंट खुद हाँ के। शायद टेस्टिंग का है, फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट, मतलब सीक्रेट मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई कनेक्शन के लिए, कम्युनिटी क्लाउड। अच्छा ये इनका हुआ है जहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो आपकी ऐप को डायरेक्टली। नेवर यूज्ड इट, ट्राई ट्राई करते हैं इसको, डिप्लॉय क्या बोलते हैं फॉर पर्सनल वही ऑर्गेनाइज। स्ट्रीमलीट में डायरेक्ट जो अपना वेब पेज था ना, उस पे भी आ रहा था क्या हो डिप्लॉय। रहा है, ऐप इज नॉट कनेक्टेड रिमोट डेटा रिकॉर्डेड टू, अच्छा ओके, इसको वो करना पड़ेगा। ठीक है यार, करके देखते हैं ना इसको क्या प्रॉब्लम है ना। लेट मी सेट अप अ गिटहब रिपोजिटरी, साइन इन, okay, I need to create a new repository. रिपोजिटरी का नेम क्या होगा अपना? स्ट्रीम डेटा एनालिसिस, है ना? नहीं, स्ट्रीम डेट IPL डेटा एनालिसिस। और ये पांडास यूज करता है ना डेटा उससे रीड करने के लिए। वो तो अब मतलब बेसिकली इनके पास क्या है, डेटा फ्रेम को डायरेक्टली आप अटैच कर सकते हो, ऐसा है। अच्छा। I'm building a GitHub repository, give me a second, ठीक है? Okay, so I got this repository. Let me connect all this. Okay, so मैंने कोड पुश कर दिया है ना, लेट्स सी क्या करता है। डिप्लॉय का ऑप्शन आता है क्या? डिप्लॉय नाउ, अच्छा आता है ऑप्शन, कंटिन्यू साइन इन, मुझे लगता है गिटअप से कर देना चाहिए ना, जब गिटअप का ऑप्शन नहीं है तो। ऑथराइज्ड, ओके, लेट मी सी। तो ब्राउज़र विंडो दिख रही है ना मेरी?
मेरे को भी वो स्ट्रीमलीट की डॉक्यूमेंटेशन की विंडो दिख रही है। ये मतलब बेसिकली वो वेरीफाई कर रहा है लॉगिन कराने के गिटहब से, ना ऑथराइज डन है ना, डिप्लॉय And URL option. वो शायद फिर प्राइसिंग वेरिसिंग का होता है ना कि आपके अपने डोमेन अटैच कर दो ऐसा कुछ। कस्टम डोमेन की तो ऐसे दिख रहा है नाइस, वो, ठीक है। अच्छा है। Okay, so your app is ready. ये चल रहा है, डिप्लॉयड है। हाँ हाँ, ये देखना। अच्छा, सही है ना, ये डिप्लॉयड यूआरएल भी चल रहा है। अच्छा है यार, है ना। वी जस्ट नीड टू पुट द गाय नेम जहाँ से अपने डेटा लिया है ना, वी जस्ट पुट दिस। नहीं ये तो नहीं था, यहाँ से लिया अपने ना, ठीक है ठीक है। आई थिंक आई एम गुड, लुक्स गुड, है ना। बस विल क्रिएट मोर वीडियोस ऑन स्ट्रीमलीट, है ना। जो एलएलएम वाला बताया मैंने वो अपन ट्राई कर सकते हैं, है ना। चैटबॉट वाला जो आपने हाँ, बाकी तो मेरे हिसाब से यार काफ़ी अच्छा लगा मेरे को तो हर चीज़ से, और इजी टू यूज़ है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसके अंदर अपन इनपुट्स वगैरह भी बना सकते हैं। सब कुछ है ना, पूरा फॉर्म, मतलब पूरा यूआई बन जाता है आपका, पूरी ऐप बन सकती है, पूरी की पूरी ऐप बन सकती है। जैसे ये देखना इनपुट, ये है ना इनपुट ड्रॉप डाउन्स, तो इनपुट ही तो है ये, तो ड्रॉप डाउन है जैसे इनपुट बन जाएगा आपका, आपको कुछ सर्च लगाना है तो वैसा, ठीक है ना। हाँ। ये जैसे डाउनलोड बटन दे दिया तो इस पे एक्शन है, जस्ट लाइक और इसका मेरे को एक चीज समझ नहीं आई, जो ये टेबल है, जैसे इसके अंदर अपन ने जब सर्च करा, दैट। है ना, तो इसने सिर्फ वो बटन्स मतलब वो कॉलम्स हाईलाइट कर दिए जिससे वो मैच हो रही, ठीक। तो फिर डाउनलोड करते टाइम पे क्या डाउनलोड करा, सिर्फ वो रोज जिसमें मैच हो रही है? नहीं, ये तो सिर्फ यूआई इंटरेक्शन है, डेटा तो पूरा डेटा डाउनलोड करेगा, क्योंकि ये फिल्टर थोड़ी कर रहा है, ये एक्चुअल आपको फिर वो करना है, फिर आपको क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप डेटा फ्रेम में फिल्टर करो, डेटा फ्रेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसको फिल्टर लगा दोगे आप, तब वो फिर वो काम करेगा जो आपका एक्चुअल फिल्ट्रेशन है। ये एक सिर्फ क्विक डेटा के भाई सर्च कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, इसका और कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, पर ठीक है, स्टिल मेक सेंस, है ना। ऑलराइट, सो let's call it a video. Okay. Thank you, bye.